ہم اپنے آپ کو خداوند کی عبادت کے لیے تیار کریں۔ مسیح کے زندہ خوبصورت پاک نام میں آپ سب کو پادری نور سیمل کا ویسٹرن ایشین یونائٹڈ فارم چرچ کی طرف سے السلام علیکم۔ ہم آپ سب کو آج کی اس آن لائن عبادت میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئیے ہم خداوند کی ہم کریں اور ہم زبور 117 جو ہے وہ خداوند کے پاک کلام میں سے تلاوت کریں گے۔ آئے قوموں سب خداوند کی حمد کرو، آئے ہم تو سب اس کی ستائش کرو، کیونکہ ہم پر اس کی بڑی شفقت ہے، خداوند کی سچائی ابدی ہے، خداوند کی حمد کرو۔ آئیے ہم دعا مانگیں اور خداوند کی شکرگزاری کریں۔ آج کی اس بات کو خداوند کے ہاتھوں میں دیں، خداوند کی برکت چاہیں، وہ جو کہ قدوس اور پاک ہے، ہم اس کا شکر ادا کریں۔ خداوند کی ساری نعمتوں برکتوں بخشوں کے لیے خداوند کا شکر ادا کریں۔ اور اس ابتدائی دعا کے لیے میں دعوت دوں گا شہان بینٹ کو کہ وہ دعا میں رہنمائی کریں اور خداوند کے پاک روح کی رہنمائی چاہیں، اور تمام کلیسیا کے لیے اور وہ لوگ جو کہ سوشل میڈیا پہ ہمارے ساتھ ہیں ان کے لیے بھی خداوند کی برکت چاہیں۔ تو شہان بینٹ دعا میں رہنمائی کریں۔ خداوند تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو، تیری پرستش ہو۔ خداوند تو تین خدا ہے، تو ناممکنات کا خدا ہے۔ تیرے پیار، تیرے رحم، تیرے فضل کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں خداوند۔ آج کی تمام عبادت کو خداوند تیرے پاک کنٹرول میں دیتے ہیں خداوند۔ جو کچھ بھی آج ہم گاتے ہیں، جو کچھ بھی آج ہم تیرے کلام میں سے سیکھتے ہیں خداوند، تو تیرے حضور قبول کرے خداوند، اور ہماری زندگیوں میں کام کرے خداوند۔ آج کی تمام عبادت کے لیے خداوند تیرے پاک روح کو ویلکم کرتے ہیں خداوند۔ تیرا پاک روح ہم سب میں سے ہم سب کے ساتھ کلام کرے خداوند، اور ہماری انڈرسٹینڈنگ کو بڑھائے۔ ہمیں تیرے کلام کی جو باریک باتیں جو ہم اپنی سوچ سے نہیں سمجھ سکتے، وہ صرف اور صرف تیرے پاک روح کے وسیلہ سے سمجھ سکتے ہیں خداوند۔ We welcome Holy Spirit in this meeting today خداوند۔ تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو۔ جو لوگ ہمارے ساتھ اس پر زوم پر جوائن ہے خداوند، ان سب کے ساتھ، اور جو لوگ جوائن ہونے کو ہے خداوند سب کے ساتھ خداوند، جہاں کہیں بھی تیرا کلام اور تیری عبادت آج دیکھی جائے، سنی جائے خداوند، ہر کسی کی زندگی میں یہ برکت ثابت ہو خداوند۔ اپنے خادم کے ساتھ ہونا اور خداوند تمام عبادت میں تیرا نام جلال کر، یسوع کے نام سے مانگتے ہیں خداوند۔ آئیے ہم خداوند کی حمد کریں اور ہم زبور 48 خداوند کی تعریف میں گائیں گے۔ تیری ہیکل دے وچ کیتا تیری رحمت تے دھیان، بھرپور حق سجا تیرا سچائی نال رحمان۔ سام 48 ہم سب مل کر خداوند کی حمد کریں۔
जानते हैं कि वो अपने दाहिने हाथ से हमें संभालता है। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं, उनको अपने वादों में सच्चा और बरहक है। हम शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे खुदावन के इख्तियार के लिए और अपने घरानों के लिए खुदावन की शुक्रगुजारी करेंगे। इस सारी रफाकत, प्यार और मोहब्बत के लिए खुदावन का शुक्र करेंगे कि खुदावन के लोग दूर और नज़दीक से हमारे साथ इस बात में शामिल हैं। हम खुदावन के हुज़ूर अपने गुनाहों का इकरार करें, खुदावन से दरख्वास्त करें खुदावन हमारे गुनाहों को, तकसीरों को माफ़ फरमाए और हमें ये तौफीक बख्शे कि हम खुदावन की मर्ज़ी को अपनी ज़िंदगी में हर रोज़ पूरा करें। और सुनील हमारे साथ शामिल है सऊदी अरबिया से, सलमान अनिल, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो दुआ में रहनुमाई फरमाएं। सलमान अनिल, आइए हम दुआ मांगे। थैंक यू। इस्राएल के कुदूस खुदा बाप के हुजूर में अपने सर को झुकाएं, उसकी हजूरी को महसूस करें और खुदा ज़ुल जलाल के हुजूर में अपने लबों को खोलिए, उसकी ताज़ीम तमजीद कीजिए, उसके कुदूस नाम को दान बात कहिए, क्योंकि सजदे फक्त उसकी पाक कुदूस इलाही ज़ात को रवा है और हम तो सलाइश फक्त खुदा बाप के पाक नाम को ज़िबा। हम दुआ मांगे। रहीम खुदा बाप, खुदा ज़ुल जलाल, अज़ीज़ और अपनी बादशाह, लश्करों के रब खुदा बाप, तुझे जलाल का बादशाह है। आज बादल दोपहर खुदा बाप, हमारे दिल आपकी शुक्रगुजारी से भरे हैं। खुदावंद, हमारे लब आपकी ताज़ीम करते हैं, आपकी तमजीद करते हैं, आपके मुबारक नाम की सितारिश करते हैं। खुदा बाप, आपकी उस गैर मशरूत मोहब्बत के लिए, अनकंडीशनल लव के लिए, जो कि खुदा बाप आपने हम तमाम जहान के गुनहगारों से फरमा रखा है। और खुदा बाप, आपका फज़्ल और रहमत पर हाथ हम सब पर बड़ा है और हम एक हफ्ते के बाद जब दोबारा यहाँ पे जमा हुए हैं, खुदा बाप शुक्रगुजार हैं कि आपके फज़्ल के बायस हमने सलामती के साथ एक दूसरे को भला चंगा पाया है। खुदा बाप, आपके इस नज़र करम के लिए शुक्रगुजार हैं। हमारे खुदावन, आज बादल दोपहर हम आप खुदा बाप के हुजूर में शुक्रगुजारी के सजदे गुजराते हैं। हमारे रब आपकी ताज़ीम और तमजीद करते हैं। खुदा बाप, आपकी बेइंतहा लातदार रहमतों, बरकतों और बख्शिशों के लिए, जिनका कि कुछ शुमार नहीं है, क्योंकि वो आपके फज़्ल के बायस कसरत से हैं। खुदा बाप, आज दोपहर हम आपके हुजूर में शुक्रगुजारी के सजदे गुजारते हैं। खुदाउन, हमारी जानें आपके हुजूर में सीधा रेज होती हैं और शुक्रगुजारी करती हैं। खुदा बाप, आपकी करम की निगाह के लिए, आपके फज़्ल के लिए, क्योंकि आपका फज़्ल हम सब के लिए, हमारे घरानों के लिए काफ़ी है। खुदा बाप, आज दोपहर इस इबादत के लिए दुआ करते हैं, शुरू से लेकर आखिर तक अपने करम की निगाह फरमाइए। अपने परों के नीचे हम सबों को और हमारे चौखट की सारी फ़ज़ा को महफूज फरमाइए। खुदा बाप, आज की इबादत से सारी इज्जत, सारा जलाल आपके कुदूस नाम को मिले। आपका कलाम अक़दस का पढ़ा सुना समझा जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत, बाइस से तौबा हो, बाइस से निजात हो। और खुदा बाप, आपकी खादम पादरी नोबल सैमुअल के लिए दुआ करता हूँ। खुदावंद, अपने बंदा को और ज़्यादा हिकमत से, दानाई से, फहम से मामूल फरमाइए, ताकि खुदावंद आज के कलाम की जब आपका बंदा तफसीर करे तो आपका खादम नहीं बल्कि आप खुद खुदा बाप उसे रूह की मामूली में से नवाजिए, ताकि वो आपके कलाम मुक़द्दस के मुताबिक, आपकी पाक मर्ज़ी के मुताबिक जो कलाम का हिस्सा आपने अपने बंदा को दिया है वो हम तक पहुँचाए। खुदा बाप, हमारी इस फरियाद को, इल्तिजा को, दुआ को, शुक्रगुजारी को और हमारी फरियादों को, और जो खुदावंद हमने अपने हमारे दिलों में है, हमारे उन नेक इरादों को पूरा फरमाइए। हमारी दुआओं को अपने हुजूर में सुनिए और कबूल व मंजूर फरमा दीजिए। उसी हमारे खुदावंद यीशु मसीह नासरी के फतहमंद, अज़ली, अपनी और जलाली नाम से ये दुआएं मांग कर पा लेते हैं, आमीन। खुदावन आपको बड़ी बरकत दे, खुदावन आपके साथ हो। हम एक बार फिर अपनी आवाज़ों को खुदावन के जलाल के लिए बुलंद करेंगे और हम ज़बूर करेंगे 24। रब खुदावन बादशाह है, वो जलालदा बादशाह है। ऊँचे करो से दरवाजे, ऊँचे हो सब का। ज़बूर 24 हम खुदावन की तारीफ में गाएंगे।
بادشاہ ہے، تو جلال بادشاہ ہے، رب خداوند بادشاہ ہے، تو جلال بادشاہ ہے، اونچے کرو سر دروازے، اونچے ہو سب دارو، اونچے کرو سر دروازے، اونچے ہو سب دارو، جان جلال بادشاہ آوے، سر اونچے کرو، جان جلال بادشاہ آوے، سر اونچے کرو، رب خداوند بادشاہ ہے، تو جلال بادشاہ ہے، جلال بادشاہ کون ہے، کون بادشاہ کا والا، جلال بادشاہ کون ہے، کون بادشاہ کا والا، رات جو جگ بچ ہے وہ آوے، وہ بادشاہ جلال، رب جو جگ بچ ہے وہ آوے، وہ بادشاہ جلال، رب خداوند بادشاہ ہے، تو جلال بادشاہ ہے، اونچے کرو سر دروازے، اونچے ہو سب دارو، اونچے کرو سر دروازے، اونچے ہو سب دارو، جان جلال بادشاہ آوے، سر اونچے کرو، جان جلال بادشاہ آوے، سر اونچے کرو، رب خداوند بادشاہ ہے، تو جلال بادشاہ ہے، جلال بادشاہ کون ہے، کون بادشاہ کا والا، جلال بادشاہ کون ہے، کون بادشاہ کا والا، رشرانا رب یہوہ، وہ بادشاہ جلال، رشرانا رب یہوہ، وہ بادشاہ جلال، رب خداوند بادشاہ ہے، تو جلال بادشاہ ہے۔ ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، خدا ہمارا خدا ازلی اور ابدی بادشاہ ہے، ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، خدا کی اس مہربانی کے لیے کہ اگرچہ وہ بلند و بالا ہے تو بھی ہماری فکر کرتا ہے۔ آئیے ہم خدا کے پاک کلام کو سنیں، مقدس متی کا انجیلی بیان 7 باب 7 سے 11 آیات تک، میتھیو چیپٹر 7 verse 7 to 11۔ ہم اس ویڈیو کو انگلش اور اردو دونوں زبانوں میں ہم سنیں گے۔ پہلے ہم اردو میں سنیں گے اور بیٹی ہمارس عدیل کوکر جو ہے وہ اس کو تلاوت کریں گی، اور پھر انگلش میں اس ویڈیو کو سنیں گے، اور بیٹی شازیہ چاند میتھیو چیپٹر 7 to 11 بیٹی شازیہ چاند انگلش میں تلاوت کریں گی، اور ہمارس عدیل کوکر جو ہے وہ اردو میں اس کو تلاوت کریں گی۔ آئیے خدا کا پاک کلام سنیں۔ جی بیٹا۔ متی 7 باب
7:7-11 क्योंकि मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके वास्ते खोला जाएगा। तुम में कौन सा आदमी है कि अगर उसका बेटा उसे रोटी मांगे तो वो उसे पत्थर दे, या अगर मछली मांगे तो उसे सांप दे? पर जबकि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो तुम्हारा बाप जो आसमान पर है अपने मांगने वालों को अच्छी चीजें क्यों करा दे? Thank you, बेटा. God bless you. आमीन. Thank you. अभी हम इंग्लिश में से सुनेंगे मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 7 to 11 और बेटी शादिया इसको फरमाएंगे. Ask and you will receive, seek and you will find, knock and the door will be opened to you. For everyone who asks will receive, and anyone who seeks will find, and the door will be opened to him who knocks. Would any of you who are fatherless give your son a stone when he asks for bread, or would you give him a snake when he asks for a fish? Bad as you are, you know how to give good things to your children. How much more then will your Father in heaven give good things to those who ask him? Amen. Thank you, बेटा. God bless you. हम खुदावंद की तारीफ करेंगे और गीत गाएंगे. रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना. गीत नंबर 217 है. सियालकोट गीत की जो कमेंशन की किताब है उसमें हम इस गीत को गाएंगे. रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना. आप अपने घरों में भी जहां पर भी आप हैं, आप खुदावंद की हम कर सकते हैं. तालीम से खुदावंद की इस्ताइश करें और हम गीत गाएंगे रब की होवे सना हमेशा. रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना सराई, रब की होवे सना सराई, उसी की होवे सना, हालेलुया, उसी के नाम की सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना. रब के घर में होवे सितारे, रब के घर में होवे सितारे, उसकी हम तो सना, हालेलुया, उसकी हम तो सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना. पापों में है वो गहरा राजे, पापों में है वो गहरा राजे, उसकी कुदरत बता, हालेलुया, उसकी कुदरत बता हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना. जय के दो तुमको रखेंगे,
खुदावन का शुक्र हो कि वो हमें ये तौफीक बख्शता है कि हम अपने होंठों का फल खुदावन के सामने पेश कर सकते हैं। मैं जब सोचता हूँ कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास आवाज़ की नेमत नहीं है, जो बोल नहीं पाते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद हाथों से महरूम हैं, खुदावन की हम्दो सना ताली बजाकर नहीं कर पाते। खुदावन ने हमें ये नेमतें और बरकतें बख्शी हैं, खुदावन का शुक्र अदा करिए। हम इस वक्त दुआ करेंगे इस मुल्क के लिए, आलमगीर सतह पर जो भी इस वक्त नस्ली इम्तियाज़ात की वजह से जो मुश्किलात हैं, जो रेशल टेंशन चल रही है ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, यूके में, हम खुदावन से दुआ करें कि खुदावन अमन और सलामती पैदा करे। हम खुदावन से दरख्वास्त करें इंडिया और पाकिस्तान की कलीसियाओं के लिए कि जहाँ पर कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारे लोग आज मुश्किल में हैं, परेशानी में हैं, बहुत सारे लोग हलाक हो रहे हैं। खुदावन अपने लोगों को अपनी पनाह में ले। अबलीस जो कि फाड़ने वाला है, हलाक करने वाला है, खुदावन जो ज़िंदगी बख्शता है, खुदावन का शुक्र करें। खुदावन की फतह याब क़यामत के लिए उसका शुक्र करें कि वो ज़िंदा है और हमारे साथ है, वो मुसीबत में मुझसे मददगार है। हम खुदावन का शुक्र अदा करें और अपनी कलीसिया के एक एक ख़ानदान के लिए, ख़ास तौर पर हम बुज़ुर्गों के लिए दुआ करें कि खुदा हमारी कलीसिया के बुज़ुर्गों के साथ हो। हम उन लोगों के लिए जो कि आइसोलेशन में हैं, हम उनके लिए दुआ करें, खुदा उनसे दरख्वास्त करें। भाई गुलजार अहमद के लिए हम खुदा उनसे दरख्वास्त करें, मिसिज़ बरकत के लिए जो मेरे बुजुर्ग हैं, मिसिज़ सिंह के लिए तो खुदा उनके साथ हो। डेरिक और हैरिस के लिए, डेबी के लिए खुदा उनकी बरकत चाहें। हम खुदा उनसे दरख्वास्त करें मिस्टर एंजलो के लिए, मैं अंजुम के लिए खुदा उनके साथ हो। हम उन तमाम अजीज़ों के लिए जो कि दीगर ममालिक में हैं, उनके लिए खुदा उनकी बरकत चाहें। हम खुदा उनसे दरख्वास्त करें कि खुदा हमारे कलीसिया के इन जो हमारे जो सीनियर सिटीज़न हैं उनके साथ हो, खुदा उन्हें बड़ी बरकत बख्शे। हम खुदा उनसे दरख्वास्त करें गुलजार चांद के लिए, खुदा उनसे मिन्नत करें बड़ी विनस के लिए, खुदा उन सबके साथ हो। अपने बच्चों के लिए ख़ास तौर पर दुआ करें, वो जो कि स्कूल नहीं जा पा रहे, उनके पेरेंट्स के लिए दुआ करें, खुदा उनके साथ हो। जो स्कूल जा रहे हैं, खुदा उनकी हिफाजत होने के बानी फरमाए। हम इन सब बातों के लिए खुदा उनके सामने इन दरख्वास्तों को रखें। अपने प्राइम मिनिस्टर के लिए, क्वीन के लिए दुआ करें। आइए हम सब बातों के लिए खुदा उनसे दरख्वास्त करें और सुहेल शरीफ जो है दुआ में वो हमारी रहनुमाई फरमाएँ। आइए हम खुदा उनसे दरख्वास्त करें, दुआ मांगें। सुहेल आप सुहेल सुहेल नहीं, अच्छा ठीक। आइए हम दुआ करें, दूसरा दुआ करें। जो हम सब खुदावंद के हुक्म सुनते हैं, खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरे नाम की तारीफ हो, तेरे नाम की सितारिश हो। खुदावंद तो हम तारीफ के लायक खुदावंद हो। आज के दिन के लिए खुदावंद तेरा शुक्र करती हूँ कि तूने हमें ज़िंदगी की सांसें बख्शी कि हम तेरी हज़ूरी में आ सके, तेरी इबादत कर सके, तुझे मुबारक कर सके खुदावंद, क्योंकि तू इस लायक है तेरी इबादत की जाए। खुदावंद आज के सारा दिन के लिए खुदावंद तेरा शुक्र हो। खुदावंद जिन दरख्वास्तें जो भी दरख्वास्तें तेरे सामने रखी गई हैं खुदावंद, उनके लिए खुदावंद तेरे आगे मिन्नत करती हूँ। जहाँ भी लड़ाई झगड़े हैं, फसाद है खुदावंद, क्योंकि तेरी आमद नज़दीक है खुदावंद। तेरे कलाम में लिखा है कि जब तुम इन सब बातों का होना देखो तो यकीन कर लो कि मैं नज़दीक हूँ। बल्कि तो खुदावंद दरवाजे पर खटखटा रहा है और खुदावंद तो हमेशा अपने लोगों के लिए अपनी बाएं फैलाए हमारा इंतज़ार करता है कि मेरे बच्चे मेरे पास लौट आए, गुनाहों से तौबा करें और खुदावंद ज़िंदगी हासिल करें। खुदावंद आज के दिन के लिए खुदावंद जबकि तेरा पाक और मुबारक दिन है, जिसमें खुदावंद तूने मौत और कब्र पर फतह पाकर हमें ये मुबारक दिन दिया खुदावंद कि हम तेरी शुक्रगुजारी कर सकें। खुदावंद मैं दुआ करती हूँ बीमारों के लिए खुदावंद, जहाँ जहाँ भी खुदावंद लोग बीमार हैं इस वबा की वजह से खुदावंद, या किसी किस्म की बीमारी में मुबतला है खुदावंद,
तो उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती बख्श खुदावन, क्योंकि तू ही इस लायक है कि शिफा दे सके खुदावन, क्योंकि तेरे खून में शिफा है। तेरा खून आज भी इसी तरह काम करता है खुदावन। जब हम तुझे पुकारते हैं तो हमारी दुआओं पर कान लगाता है खुदावन, और हमें कभी भी नाउम्मीद नहीं होने देता। तेरा शुक्र हो खुदावन। खुदावन मैं दुआ करती हूँ, दुआ अजरा के लिए, डेबी डेरिक के लिए, मिसेस सिंह के लिए, मिसेस बरकत के लिए, और अपनी कलीसिया के तमाम खानदानों के लिए खुदावन तेरे आगे मिन्नत करती हूँ। खुदावन जो यहाँ पर हाजिर हैं खुदावन जो इबादत में, उन सब के लिए भी खुदावन तेरी बरकत चाहती हूँ। और खुदावन जो भी इस प्रोग्राम में शामिल है, जिस कंट्री में भी हैं, जिस शहर में भी हैं खुदावन, तो उन सब के साथ हो। आज की इबादत हमारे लिए खुदावन खुशी का सबब ठहरे। और खुदावन खास तौर से दुआ करती हूँ कि आज जब तेरा बंदा तेरा कलाम पेश करे तो खुदावन बहुत सी रूहें तेरे पास आए और तौबा करे खुदावन, क्योंकि दिन करीब है खुदावन। हमें खुदावन माफ़ कर, क्योंकि हम नहीं जानते कि तू किस वक्त आ जाए और हम अपने गुनाहों का इकरार ना कर सके खुदावन। इसलिए खुदावन हमें हर वक्त तुझे देखना है, तेरे पीछे चलना है खुदावन। हमें इस लायक बना खुदावन कि हम तेरे पीछे चल सके, तेरे हुक्मों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर कर सके खुदावन। आज की बात को शुरू से लेकर आखिर तक तू हमारी मदद और रहनुमाई करना, हमारी हमद और सताइश करता बनाना। ये सब कुछ तेरे बेटे यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। हम खुदा की तारीफ करेंगे और हम एक कोट से वो गाएंगे, जलाल जलाल हालेलुया, खुदा काम करता है, और अपने आप को पाक कलाम सुनने के लिए तैयार करेंगे। अपनी आंखों को बंद करें और खुदा की हुजूरी को महसूस करें। जलाल जलाल हालेलुया, जलाल जलाल हालेलुया, जलाल जलाल हालेलुया, खुदा काम करता है। जलाल जलाल हालेलुया, जलाल जलाल हालेलुया, जलाल जलाल हालेलुया, काम करता है। जलाल जलाल हालेलुया, जलाल जलाल हालेलुया, जलाल जलाल हालेलुया, हम आगे बढ़ते हैं। खुदा हम तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं कि तू और तेरा कलाम हमारी ज़िंदगी में काम करते हैं। खुदा हम तेरे पाक रूह के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं जो हमें कुव्वत, हिकमत और दानिश बख्शता है। खुदा हम तेरे लोगों के लिए तेरे पाक रूह की मामूली चाहते हैं। खुदा हम दुआ करते हैं कि कलाम का ये बीज जब बोया जाए तो बहुत सा फल आए। खुदा हम तू मेरी कम मायगी में, कम अकली में अपनी दानिश, अकल और हिकमत को अदा करना, बड़ी बरकत देना। तेरे जिंदा कलाम के लिए तेरा शुक्र करते हैं जिसमें जिंदगी है, कुव्वत है, ताजगी है, तेरा खुदामद शिफा है। हम इसके लिए तेरा शुक्र करते हैं और तेरी मौजूदगी के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, यीशु के जिंदा जलाली और कदूस नाम में, आमीन। अजीजों, आज हम खुदावंद के जिस पाक कलाम के हिस्से पर गौर करने को हैं, वो अगरचे हमारी जो बाइबल स्टडी है, जो वीकली हम बाइबल स्टडी करते हैं, ये उसका हिस्सा है। कल हमने मत्ती का इंजीली बयान का 7वां बाब, उसकी पहली 6 आयात पर गौर किया, और वो लोग जो कि बाइबल स्टडी में शामिल थे उनको मालूम है कि हमने एक बहुत ही अहम मजमून पर बात की, ऐब जोई पर, और हमने इसके बारे में सीखा
اور ہم جانتے ہیں کہ یہ جو سرمن آف دا ماؤنٹ ہے اس کے بارے میں آج کل ہم اسٹڈی کر رہے ہیں، جو پہاڑی واز ہے، اور یہ خداوند کی بادشاہی کے بارے میں جو خداوند کا منشور ہے اس کے بارے میں یہ تعلیم یہاں پر پائی جاتی ہے۔ اور ہم نے اپنی جو ہماری جو ڈیلی جو بائبل اسٹڈی ہوتی ہے اس پر بھی ہم نے اس بات کے لیے آج کل گیان شروع کیا ہے، خداوند کی جو بادشاہت ہے، اباؤٹ دا کنگڈم آف گاڈ، دس از اوور مین تھیم ان اوور بائبل اسٹڈی، اور اس کے 2 سیشن ہم مکمل کر چکے ہیں، اور خداوند چاہا تو نیکسٹ ویک ہم اس مضمون کو لے کر آگے بڑھیں گے۔ آج جس مضمون پر میں بات کرنے کو ہوں یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جو میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ مینیفیسٹو ہے، یہ خداوند کی بادشاہت کا ایک منشور ہے جس کے بارے میں آج ہم مزید بات کریں گے۔ کسی بھی آرگنائزیشن جو خاص طور پر جیسے یونائٹڈ نیشن ہے یا اس طرح کے جو بڑے ادارے ہیں ان کا ایک چارٹر ہوتا ہے، ایک منشور ہوتا ہے، اور اس کے مطابق وہ کام کرتے ہیں۔ اور خداوند یسوع مسیح نے ہمیں اپنی بادشاہت میں ایک جو دعا کا ایک جو چارٹر دیا ہے، ایک طریقہ کار یا ایک منشور، جو ایک لائحہ عمل جو ہے وہ وضع کیا ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ جو آیات ابھی ہم نے خداوند کے پاک کلام میں سے تلاوت کی، مقدس متی کا انجیل 7 باب کی 7 آیت سے لے کر 11 آیات تک، تو اس میں ہم جو اس پیراگراف کو، اس اقتباس کو جو ہم تھیم دے سکتے ہیں وہ ہے کیپ پریئنگ، دعا کرتے رہیں۔ یہ ایک کنٹینیوس جو ایک عمل ہے، ایک فعل جاری ہے کہ ہمیں دعا کرتے رہنا ہے، خداوند کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہنا ہے، ہمیں ڈھونڈتے رہنا ہے، اور خداوند جو ہے وہ ہماری دعاؤں کا جو ہے وہ جواب دیتے ہیں۔ We need to be persistent in our prayer۔ اور یہ جو 3 عمل ہے، مانگنا، ڈھونڈنا اور کھٹکھٹانا، یہ وہ عمل ہے جو ہمیں کرنے ہیں، ہمیں کھٹکھٹانا ہے، ہمیں ڈھونڈنا ہے، اور پھر خداوند کا جو خداوند کی طرف سے جو کام ہے کہ وہ ہمیں دیتا ہے، جب ہم ڈھونڈتے ہیں تو پاتے ہیں، جب کھٹاتے ہیں تو وہ ہمارے واسطے کھولتا ہے۔ تو یہ آج ہم اس بارے میں دیکھیں گے، لیکن اس سے پہلے کہ میں اس مضمون کو اور زیادہ لے کر آگے بڑھوں، ایک جو بہت بڑی ہمارے معاشرے کی جو مشکل ہے کہ ہم جس سے دعا کرتے ہیں اس کے بارے میں ہم نہیں جانتے کہ ہم دعا کس سے کر رہے ہیں۔ خدا کو جاننا انتہائی ضروری بات ہے، اور یہاں پر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح نے ہمیں ایک جو خوبصورت بات جو سکھائی ہے دعائے ربانی میں بھی، جس کے بارے میں ہم نے سیکھا متی کے انجیل 6 باب میں، اور یہاں پر بھی ایک ریلیشن شپ کی بات ہے۔ ہم اگر صرف اس کو ایک دوسرے خداؤں کی طرح جو دنیا میں ہے اگر اس طریقے سے ہم لیتے ہیں، جیسے کہ دنیا میں بہت سارے خدا ہیں، بہت سارے دیوی دیوتا ہیں، لیکن خداوند نے یہاں پر ایک ریلیشن شپ کی بات کی ہے، باپ ہونے کی بات کی ہے۔ The concept of fatherhood is only in Christianity۔ صرف مسیحیت میں ابویت کا اور ابنیت کا جو تصور ہے وہ پایا جاتا ہے۔ صرف بائبل مقدس میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ وہ خدا ہمارا باپ ہے اور ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ انفارچونیٹلی جو چرچ کے اندر، شاید یہ میری بات بہت سارے لوگ اس سے متفق نہ ہوں، لیکن میں اس کو ایک اور تھیم جو دینا چاہ رہا تھا اس آج کی جو ہمارا جو واز ہے، میں اس کو کرسچن ایگنوسٹک یا کرسچن ایتھیسٹ کا جو میں اس کو جو تھیم جو دینا چاہ رہا تھا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ چرچ میں آتے ہیں، دعا کرتے ہیں، بٹ فیل ٹو انڈرسٹینڈ دیئر ٹرو ریلیشن شپ ود دیئر گاڈ۔ اور ایگنوسٹک کون ہوتے ہیں؟ وہ جو اس کی میں نے جو ڈکشنری میں جو اس کی جو ڈیفینیشن جو ہے وہ دیکھی، a person who disbelieve or lack belief in the existence of God۔ وہ ایک تو وہ جو کہ ٹوٹلی خداوند کے جو ہے وہ منکر ہوتے ہیں، اور اس کی یہ بھی یہاں پر جو ڈیفینیشن بیان کی گئی ہے کہ جن کے اندر کمی ہے خداوند کی موجودگی کے بارے میں، خداوند کی ایگزسٹنس کے بارے میں،
जो पूरे तौर पर यकीन नहीं रखते खुदा है या नहीं। एग्नोस्टिक जो है वो ऐसा सोचते हैं कि पता नहीं जी, ये एक ज़हनी इख्तरा है। और हम जिस माहौल में रह रहे हैं, एक और जो यहाँ पर टर्मिनोलॉजी जो मैं यूज करना चाहता हूँ, स्केप्टिक, वो जिनके मजहबी अकायद जो है वो सच्चाई के बारे में शक व शुबहात पर जो है वो मुश्तमिल होते हैं। Those who are having doubt in their mind कि जी पता नहीं खुदा है या नहीं है। Person who is doubting or suspicious about something, वो स्केप्टिक होते हैं। जो कि खुदा के बारे में शक रखते हैं, डबल माइंडेड। शकी शख्स होता है जो डबल माइंडेड होता है, जो आधा सच जो है उसको मानता है, ठीक है होगा नहीं खुदा, हाँ जी वाकई ये कायनात किसी ने बनाई है। लेकिन जब ईमान की बात आती है, जब फेथ की बात आती है, और ईमान की जो खूबसूरत तस्वीर जो इब्रानी खत में दी गई है कि ईमान अनदेखी चीजों का सबूत है, वो चीजें जो हमें नजर नहीं आती उन पर हम ईमान रखते हैं कि वो चीजें मौजूद हैं। और बहुत सारे लोग जो है वो सच्चाई के बारे में, खुदावन के बारे में, खुदावन ने कहा था कि सच्चाई में हम सच्चाई से वाकिफ हो, सच्चाई तुम्हें आजाद करे। खुदावन ने यूहन्ना की इंजील में उसके 14 बाब में उसकी पहली 6 आयत आप देखें तो लिखा है कि राह और हक और जिंदगी मैं हूं। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो खुदावन के बारे में पूरे तौर पर नहीं जानते, और इसलिए हमारी दुआएं जो हैं वो रुक जाती हैं, और हम जिस तरीके से हमें दुआ करना चाहिए हम नहीं करते। अब दूसरा जो मेरा जो क्वेश्चन है, पहला तो ये कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है जिससे हम दुआ करते हैं वो कौन है, और इसके बारे में मैंने बताया कि हमें जिससे दुआ करना चाहिए उसके बारे में हमारे जहन में बिल्कुल एक क्लियर पिक्चर होनी चाहिए। और वो पिक्चर क्या होनी चाहिए? मैं couple of things I would like to share with you about the attributes of God, because this is not my subject today, but just for the sake of your encouragement, I want to share something about the divinity of Jesus Christ. The first thing we need to remember that our God is a faithful God. हमारा खुदा जिससे हम दुआ करते हैं वो वफादार खुदा है। आमीन। तो ये बात पहले हमें जानने की जरूरत है कि क्या जिससे हम दुआ कर रहे हैं हम उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, क्या वो वफादार है या नहीं। और ये पहली बात हमें याद रखने की जरूरत है when we are praying to God. The second thing is he is not a mighty God, he is almighty God. Amen. वो खुदा जो कौनो मकान की कैद से आजाद है, ही इज एवरीवेयर। मैं जब सुबह डिवोशन कर रहा था तो मैं एक बात जो है उस पर गौर कर रहा था खुदा के बारे में, और मैं सोच रहा था कि जो जैसे हम इस दुनिया में देखते हैं कि टेलीफोन का जो निज़ाम है, टेलीकम्युनिकेशन का, अभी हम अपने जब टीवी के बारे में सोच रहे थे तो उसमें जो सर्वर होता है जिस पे लोग उसको लॉग इन करते हैं और उस पिक्चर को देख सकते हैं या उस वीडियो को देख सकते हैं, तो देयर आर लिमिटेशन। कितने मेगाबाइट का सर्वर आपको चाहिए, कितने जीबी का आपको चाहिए, कितने टेराबाइट का आपको चाहिए। तो दैट्स अ क्वेश्चन फ्रॉम द कम्युनिकेशन जो प्रोवाइडर होते हैं, सर्विस प्रोवाइडर होते हैं। तो एक अभी जैसे कि हमारा जो सर्वर था क्योंकि उस पर इतना बोल्ट था कि वो गर्म हो जाता था, उसकी जो हार्ड ड्राइव थी, तो हम एक लिमिट तक लोगों को एक्सेस करते। अगर आप किसी जगह पे खड़े हैं तो वे 5 या 6 लोग एट ए टाइम आपसे बात करना शुरू करें, यार मैं किसी सुनूं, बारी बारी से भाई 1 by 1 आप बात करें। हमारे माइंड जो है, हमारी सोच जो है वो लिमिटेड है। वी कैन नॉट लिसन द क्राउड एट ए टाइम। वो मिक्सअप हो जाती हैं, वो शाउट करते हैं और फिर हम उसको सुन नहीं पाते दूसरे तरीके से। हमारे जो सेंसेस हैं, जो 5 सेंसेस हम हवा से खमसा कहते हैं, वो लिमिटेड हैं। हमारी आंख एक खास हद तक देख सकती है, हमारे कान एक खास डिस्टेंस तक सुन सकते हैं। खुदावन जो है वो अनलिमिटेड है। मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पीपल दे आर प्रेइंग टू गॉड एवरी डे। अभी जब हम यहां पर दुआ करें, आई डोंट नो और कहां पर लोग जो है वो खुदावन से दुआ कर रहे हैं, बट ही इज ऑलमाइटी गॉड, ही इज लिसनिंग टू ईच एंड एवरी पर्सन wherever they are, God is ready to listen to them.
آپ خداوند کو محدود نہیں کر سکتے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے سر یہ جو دعا کر رہا ہے تو میں چھوڑ دوں, میری مدد سنے گا کہ نہیں. You need to be firm in your belief. You need to be very strong in your faith that God is ready to listen to your prayer. Doesn't matter if there is more than 7.8 billion people in this world. کوئی بات نہیں ہے, چاہے آپ کراؤڈ میں ہیں, چاہے آپ اکیلے بیٹھے ہیں, جہاں پر بھی آپ ہیں, کسی جگہ پر بھی آپ ہیں, خداوند ہر جگہ ہر وقت آپ کی دعا سننے کے لیے تیار ہے. اس لیے جب ہم دعا کرتے ہیں we need to be very very confident that we are praying to God who is Almighty God. وہ ہر جگہ موجود ہے. اور دوسرا جو تیسری جو بات ہے کہ دیکھیے جب ہم کسی چیز کا تقاضا کرتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ کیا یہ شخص میری ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہے کہ نہیں ہے. آر دیٹ پرسن جن سے ہم کچھ لوگوں کر رہے ہیں, آر دے سمپیتھیٹک. یہ شخص جس سے میں کچھ مانگ رہا ہوں اس کے دل میں رحم ہے میرے لیے. God is a compassionate God. He is a merciful. وہ کائنڈ ہارٹڈ ہے, رحم دل ہے, وہ قہر کرنے میں دھیما, شفقت میں غنی ہے. اس لیے جب آپ خدا سے دعا کرتے ہیں, اور بھی بہت ساری باتیں ہیں خدا کے حوالے سے, لیکن میں یہ 3 مین جو پوائنٹس ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جب آپ خدا سے دعا کرتے ہیں تو ان 3 باتوں کو آپ ذہن میں رکھیں کہ خداوند جو ہے وہ ہر جگہ ہر وقت موجود ہے, وہ وفادار خدا ہے, اور وہ مہربان خدا ہے, رحم کرنے والا ہے, وہ آپ کی مشکلات سے واقف ہے. اب خداوند جب یہ پیغام دے رہے تھے, جب یہ بات کر رہے تھے, تو یہودی جو ہے وہ جانتے تھے دعا کے بارے میں. یہودیوں کے کلچر میں, ملک فلسطین میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ پرانے احکامہ میں ہر جگہ پر لوگ ہمیں جو ہے وہ خداوند کے لوگ جو ہے ہمیں دعا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, اور وہ جانتے تھے کہ دعا کی کیا اہمیت ہے. اور ہم اگر پرانے احکاموں کو دیکھیں تو وہاں پر ہمیں جو ہے خداوند کے لوگ جو ہیں جیسے نہمیہ ہے, وہ سب سے پہلی بات یہ کرتا ہے, خداوند سے دعا کرتا ہے. ہم خداوند کی بندی حنا کو دیکھتے ہیں کہ وہ اولاد کے لیے خداوند سے دعا کرتی ہے. موسیٰ دعا کرتا ہوا نظر آتا ہے, ابراہیم دعا کرتا ہوا نظر آتا ہے, نہمیہ جو ہے وہ مصیبت کو خداوند سے دعا کرتا ہوا نظر آتا ہے. تو یہ کچھ کے لیے نئی بات نہیں تھی, لیکن نئی بات کیا تھی کہ there was not a relationship. وہ اس سے دعا کرتے تھے. یہاں پر نئے احکامہ میں خداوند نے ایک خوبصورت جو تعلق جو ہمیں سکھایا ہے کہ ہم اس کو آئے باپ کہہ کر بلاتے ہیں, آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے. اور اس لیے یہودی کہتے ہیں کہ یہ کفر بکتا ہے, یہ خداوند کو اہم اپنا باپ کہہ کر بلاتا ہے. دیٹ واز اے بلیسفیمی ان دیٹ کلچر. وہ کہتے کہ نہیں, اکارڈنگ ٹو آور بک ہم شریعت کے مطابق اس کو باپ نہیں کہہ سکتے, ہم اس کو خدا کہہ سکتے, ادونائی کہہ سکتے ہیں, اس کو یہوہ کہہ سکتے ہیں, لیکن ہم اس کو باپ نہیں کہہ سکتے. لیکن خداوند نے ہمیں سکھایا کہ جب ہم سے دعا کریں تو ہم اسے باپ کہہ کر بلا سکتے ہیں. یہاں پر خداوند نے یہودیوں کو اور ہمیں بھی یہ سکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا کوئی باپ اپنے بیٹے سے نفرت کر سکتا ہے. اور یہ بات بڑی اہم تھی. آپ دیکھیں کہ جیسے میں نے پہلے بھی اس بات کو آپ کے ساتھ بانٹا تھا کہ یہودی کلچر میں عورتوں کو زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی تھی, غیر قوم والوں کو اہمیت نہیں دی جاتی تھی. اور یہ جو اولاد نرینہ جو بیٹے کی جو خواہش ہے نا, یہ بیٹے کا جو ایک رول سمجھا جاتا ہے ہمارے ایسٹرن کلچر میں, اور خاص طور پر آپ کو پتا ہے کہ ہر شخص جو ہے ہمارے مغرب میں تو یہ بات نہیں ہے, لیکن انفارچونیٹلی ہمارے کلچر میں ایشین سیٹ اپ میں بیٹے کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے کہ جی ہمارا بیٹا ہونا چاہیے. اور میں ان خادموں سے میں اس بات کے لیے بڑا ناراض ہوتا ہوں. ایک خادم ہے, میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا, لیکن میں نے ان سے آرگومنٹ کی اس بات کے لیے. میں نے کہا بھائی آپ جب بھی دعا کرتے ہو آپ ہر ایک کو یہ کہتے ہیں آپ کا بیٹا ہوگا, اس کا نام یہ رکھنا اور وہ پاسٹر بنے گا اس کا. تو میں نے کہا جی آپ بیٹی کے لیے کیوں نہیں کہتے, وائی یو آر گیونگ دیٹ فالس ہوپ. بیٹیاں کیا بری ہیں؟ آپ بیٹیوں کے لیے کیوں نہیں کہتے کہ چلیے آپ کی بیٹی بھی ہو سکتی ہے. آپ سمپلی اف یو آر پریئنگ فار سم ون, آپ یہ دعا کریں خداوند آپ کو اولاد جیسی نعمت دے, چاہے وہ بیٹی ہو یا بیٹا ہو. لوزا کے بڑے بھائی اور میرے بڑے بھائی پروفیسر یوسف نیئر, ان کا بڑا خوبصورت
شعر ہے جو کہ میں بڑا پسند کرتا ہوں، اور میں اس لیے جو میری کلیسیا میں بیٹیاں، میں ہمیشہ ان کو اپنی بیٹیوں کی طرح سمجھتا ہوں اور پیار کرتا ہوں. ان کی بڑا ایک خوبصورت شعر ہے کہ باپ کی محبت میں تشنگی سی رہتی ہے، باپ کی محبت میں تشنگی سی رہتی ہے جس گھرانے میں بیٹیاں نہیں ہوتی. تو یہ خداوند کی بہت بڑی برکت ہے، اور اس لیے میں ان خادموں سے ہاتھ جوڑ کے میں بنتی کرتا ہوں، یہ درخواست کرتا ہوں کہ جب بھی آپ کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو نیور ایور گیو دیم دیٹ ہوپ کہ جیسے کہ خداوند نے آپ کو بیٹا دے گا. یہاں پر ایک واقعہ ہوا کہ خداوند کے خادم جو کہ بڑے ریگولر آتے تھے، اور انہوں نے کسی پہ ہاتھ رکھ کے اس کے لیے دعا کی کہ جو آپ کے بیٹا ہوگا، اور اس کی بیٹی ہو گئی. تو وہ بڑے ان کے ساتھ اس بات کے لیے لوگ بڑے پریشان ہوئے. تو میں نے ان کو کہا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ آپ لوگوں کو ایسی امید نہ دیں، آپ خدا نہیں، آپ سمپل یہ دعا کریں خداوند آپ کو اولاد دے. تو اینی ہو، خداوند یہاں پر یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا کوئی باپ اپنے بیٹے سے ان چیزوں کا دریغ کر سکتا ہے کہ اگر اس کا بیٹا جو ہے وہ روٹی مانگے تو اسے پتھر دے؟ ساحل سمندر کے قریب ملک فلسطین میں وہاں پر سفید رنگ کے پتھر ہوتے تھے، اور وہ جو پتھر ہوتے تھے وہ روٹیوں کی طرح نظر آتے تھے، اور کئی دفعہ لوگ دھوکہ کھا جاتے تھے. اسی طرح خداوند نے کہا کہ کیا کوئی شخص جو ہے جب اس کا بچہ جو ہے، اس کا بیٹا جو ہے وہ مچھلی مانگے تو کیا اسے سانپ دے گا؟ یا ہم اس کو جو اس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کیا ہم اس کو پورا نہیں کرتے؟ باپ کی محبت کو ہم اس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں کہ مصر بیٹا جو ہے اس نے باپ سے کہا کہ جو کچھ میرا بنتا ہے وہ مجھے دے دے. دولت باپ کی تھی، اس نے اس کو کہا کہ لے جا. اور اسی ورد میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں، خداوند کے پاک کلام میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں لوکا 15 باب میں. اس پوری تمثیل کو لوکا 15 باب کی 11 سے 32 آیت میں آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن 15 باب کی 31 آیت میں بڑی خوبصورت بات لکھی ہے. بڑا بھائی جو ہے وہ جب چھوٹا بھائی آتا ہے تو اس کے بارے میں ناراض ہوتا ہے. جب ضیافت کا اہتمام کیا جاتا ہے تو باپ سے جا کے گلا کرتا ہے کہ تو نے کبھی تو مجھے ایک بکری کا بچہ نہیں دیا، اور آج اس کے لیے تو نے ضیافت کر دیا، تو نے ذبح کی ہیں، بچڑے ذبح کی ہیں، اپنے لوگوں کو بلایا، تو نے اچھی پوشاک دی ہے، اس کے پاؤں میں جوتی پہنائی ہے. تو باپ وہاں پہ اس کو کہتا ہے آئے میرے بیٹے، جو میرا ہے وہ تیرا ہے، جو میرا ہے وہ تیرا ہے، تو نے ایسا کیوں سوچا؟ ہے نا؟ تو جو کچھ خداوند کہتا ہے جو کچھ میرا ہے وہ تیرا ہے، کیونکہ وہ باپ ہے. اور آج وہ ایمانداروں سے ہم سے بھی یہ کہتا ہے کہ آئے میرے بیٹے، آئے میری بیٹی، جو میرا ہے وہ تیرا ہے. اور خداوند کا کیا ہے؟ آل دا یونیورس، ایچ اینڈ ایوری تھنگ بلانگس ٹو گاڈ. آپ جانتے ہیں کہ خداوند نے آدم کو سب کچھ بنا کر، سب کچھ کریٹ کر کے اس نے آدم کا اچھا یہ جانور ان کے نام بھی پورا کر. یو آر دا کسٹوڈین، یو آر دا اسٹیورڈ آف دس ورلڈ، دس یونیورس. آف کورس گاڈ از کریٹر، بٹ ہی گیو دیٹ اتھارٹی اینڈ پاور ٹو یو. ایوری تھنگ بلانگس ٹو یو. پھر ہم جب دعا کرتے ہیں تو ہم پریشان کیوں ہو جاتے ہیں؟ ہم کیوں وہمی اور شکی ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں خدا یہ ہمیں دے گا کہ نہیں؟ میرے ساتھ خدا ان کے پاک کلام کو دیکھیں. ایک بڑی خوبصورت بات میں اور آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. رومنز چیپٹر 8 ورس 32. رومیوں کے نام پالوس رسول کا خط. اس سے زیادہ خدا کا پاک کلام کہتا ہے کہ کوئی اور محبت نہیں کرتا. رومیو اس کا 8 باب اور اس کی 32 آیت کو دیکھیے. جس نے اپنے بیٹے ہی کو دریغ نہ کیا بلکہ ہم سب کی خاطر سے حوالے کر دیا، وہ اس کے ساتھ اور سب چیزیں بھی ہمیں کس طرح نہ بخشے گا. کون کہہ رہے تھے؟ پالوس رسول، جو خداوند کا ایک چنا ہوا وسیلہ تھا غیر قوموں کے لیے. وہ کہتا ہے کہ کون سی چیز ہمیں مسیح کی محبت سے جدا کرے گی؟ نہ موت، نہ زندگی کی، نہ حال کی چیز، نہ فرشتے، نہ حکومتیں، نہ حال کی، نہ استقبال کی چیزیں، نہ قدرتیں، نہ بلندی، نہ پستی، نہ کوئی اور مخلوق. کہتا ہے کہ جس نے اپنے بیٹے کو ہی دیر نہ کیا، اور وہ بیٹا جس کی زبان میں کوئی چھل نہیں تھا، جس میں کوئی گناہ نہیں تھا، وہ بیٹا باپ نے میرے اور آپ کے لیے دے دیا، تو وہ اور چیزیں ہمیں کیوں نہ دے گا؟ اس لیے
हमें खुदावन की भलाई, खुदावन की शफकत पर भरोसा करने की जरूरत है। खुदा हमारी दुआओं का जवाब देता है, लेकिन उसका एक तरीकाकार है। अनस्मात साहब का एक बड़ा खूबसूरत गीत है जो मुझे बहुत पसंद है, कि खुदावन से मांगने का एक तरीका है, उस तरीके से मांगे तो पाए। जब हम दुआ करते हैं तो उसका भी एक तरीका है, वी नीड टू बी हम्बल, खाकसार बनकर। खुदा का पाक कलाम कहता है, तब मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ करें, मेरे दीदार के तालिब हों, अपनी बुरी राहों से फिरें, तो मैं आसमान पर से सुनकर उनकी दुआओं को जवाब दूंगा। अगर उन्होंने गुनाह की तो उनको भी माफी हो जाएगी, उनके मुल्क को बहाल करूंगा। खुदावन जो है वो चाहता है कि हम खुदावन के पास सलीमी और फरोतनी के साथ आए। प्रॉब्लम क्या है? सिंसियरिटी नहीं है, ध्यानदारी नहीं है, डिस्करेजमेंट। लोग कितनी देर से दुआ करें, कभी तो आपकी दुआ सुनी नहीं गई। इब्लीस हमारे दिमाग में बात डालता है कि जी आपकी दुआ सुनी नहीं जा रही, आप तो बड़ी देर से दुआ कर रहे हैं। डिस्करेजमेंट जो है ये बहुत बड़ी मुश्किल है, हम हौसला हार जाते हैं। We need to be persistent and encouraged in our prayer. हमें दिलेरी के साथ खुदा के तख्त के पास आने की जरूरत है, ध्यानदारी और साफ दिली से। ज़बूर 66 उसकी 18 में लिखा है, और पंजाबी का बड़ा खूबसूरत ज़बूर है, बदी मेरे दिल च जो होवे जरा, कदे भी मेरी ना सुनेगा खुदा। और ज़बूर में से कहता, अगर मैं बदी को अपने दिल में रखता तो खुदावन मेरी ना सुनता। क्यों हमारी दुआएं रुक जाती हैं? हम इल्जाम खुदा पर देते हैं, लेकिन अपनी सेल्फ असेसमेंट नहीं करते, अपने आप को जज नहीं करते कि कहीं मेरे दिल में कोई गुनाह या बदी या दूसरे के लिए कोई बुरा तो मैं सोच रहा। कल हम ऐप जी पर बात कर रहे थे, और ज़रूर आप इसको फेसबुक पर या यूट्यूब पर इस सरमन को ज़रूर आप सुनिएगा कि क्यों हमारी दुआएं जो हैं वो रुक जाती। जब हम जजमेंटल हो जाते हैं, जब दूसरों की अदालत करते हैं, खुदावन की जगह लेने की कोशिश करते हैं, एक तरफ हम दुआएं मांग रहे होते हैं, दूसरी तरफ दूसरों का बुरा चाह रहे होते हैं। तो ऐसे नहीं होता। जब तक हमारा दिल साफ नहीं होगा, उस वक्त तक खुदावन हमारी दुआओं को नहीं सुनेगा और खुदावन हमें बरकत नहीं देता। आज सुबह मैं इंग्लिश में एक स्टोरी जो है वो शेयर कर रहा था कि एक बुजुर्ग थे, तो उनके पास एक उनका मुरीद जो था वो आया, उसका फॉलोवर जो था वो आया, और उसने कहा कि जी मुझे कोई अच्छी बातें सिखाएं। तो बुजुर्ग ने कहा कि एक बर्तन पड़ा हुआ था उसके पास, कटोरा, तो उसने वो कहा कि बेटा ये जाओ इसमें दूध ले आओ। तो जब उस लड़के ने देखा, उस शागिर्द ने देखा, तो उसमें गंदगी थी, मैला था वो। तो उसने कहा कि बाबा जी ये तो बर्तन जो है ये गंदा है, तो इससे मैं पहले इसको धो ना लूँ फिर दूध लेकर आता हूँ। बुजुर्ग ने कहा नहीं, इसी में लेकर आ। तो उसने कहा नहीं बाबा जी दूध तो गंदा हो जाएगा, ये बर्तन चूंकि गंदा है। तो उसने कहा बेटा ये बात मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, अगर आप मुझसे अच्छी बातें सीखना चाहते हो तो पहले जाकर अपने दिल को साफ करो, फिर आप इन बातों को आप अपने दिल में रख सकते हो। वी आर द कंटेनर। हम ऐसा कंटेनर है जिसमें खुदावन कहता है कि तुम मिट्टी के बर्तन हो जिसमें वो खजाना रखा हुआ है, और खुदावन गंदे बर्तनों में, वो बर्तन जो उस खजाने के लायक नहीं है, खुदावन उनमें उन चीजों का नहीं रखता। और भारी क्या वो जो कि पाक दिल है तो खुदावन को देखे आले। जब तक हमारा दिल पाक नहीं होता, जब तक हमारी सोच प्योर नहीं होती, उस वक्त हम खुदावन से दुआ भी दूसरे तरीके से नहीं कर सकते। और जब तक हम दूसरों के लिए बुरा सोच रहे हैं, दूसरों के लिए हमारे दिल साफ नहीं है, क्या फायदा उस दुआ का, और ना ही वो दुआ कबूल होती है। इसलिए ज़बूर भी हमें एक रोल मॉडल देता है, और वो कहता है कि बदी को अपने अंदर से दूर करें, हलीमी फरोतनी को अपनाएं। और सबसे जो खूबसूरत जो हमारे सामने जो रोल मॉडल है, जब हम दुआ जब करते हैं तो हम कहते हैं जी क्यों दुआ करें, खुदावन को नहीं पता? हाँ खुदावन को पता है सब कुछ। हम बात कर ये भी लोग सोचते हैं कि नहीं क्या जरूरत है, नहीं खुदावन को सब पता है। बड़े बड़े अजीब लोग हैं इस दुनिया में। मैं आपको बता रहा हूँ कि कल मैं बात कर रहा था कि अगर आपको हॉलीवुड से या बॉलीवुड से एक्टर ना मिले, चर्च में आपको मिल जाएंगे, और बड़े जबरदस्त एक्टर मिलेंगे। बहुत सारे लोग ही कहते हैं जी भाई सब की जरूरत है जी दुआ दी, सब कुछ खुदावन ने दिखा है। और फिर लोग दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं कि देखिए जी वो जो गैर कौम है, वो जो मसीही है, वो तो चर्च नहीं जाता, उसके पास भी सब कुछ है, अच्छा घर है, गाड़ी है, रुपया पैसा है, सब कुछ है, तो वाई व्हाट इज द डिफरेंस?
अजीजों, मैं किसी शख्स की मिसाल नहीं देना चाहता. I want to give you a wonderful example of our Savior, Lord Jesus Christ. खुदावंद यीशु मसीह हमें दुआ करते हुए नजर आते हैं. वो हमारे सामने सबसे बड़ा रोल मॉडल है. और कब कब खुदावंद ने दुआ की? खाने पे दुआ की. खुदावंद ने रोटियां ली, 5 रोटियां 2 मछलियां, उस पर बरकत चाहिए. खुदावंद ने मुसीबत में, दुख में, जान कहने की हालत में खुदावंद ने दुआ की. ऐ बाप, हो सके तो ये प्याला ठा दे, लेकिन फिर भी मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो. सलीब पर, आए बाप इनको माफ कर दो कि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं. आए बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ. जिंदगी के आखिरी लम्हात में भी खुदावंद के मुंह पर दुआ थी. हम अच्छे वक्त में खुदावंद का बड़ा शुक्र करते हैं, दुआ करते हैं, ज़बूर भी गाते हैं, गीत भी गाते हैं. व्हाट अबाउट एट द टाइम ऑफ सफरिंग एंड एगनी एंड पेन? पौलुस दूसरा हमें उसकी एग्जाम्पल मिलती है कि वो जब दुआ करता है खुदावंद से, तो कैद की हालत में पौलुस और सलास जब कैद में थे, खुदावंद ने बेड़ियां खोल दी. और जब वो कैद में थे, कलीसिया एक जान होकर ईमान की किताब में उसके लिए दुआ कर रही थी, और खुदावंद ने उनके लिए जेलों के दरवाजे खोल दिए. क्या हम इन मॉडल्स को अपनाते हैं? क्या हम इस बात को देखते हैं कि अगर खुदावंद यीशु मसीह की बात की बातें हम सब पसंद करते हैं? और देखिए, खुदावंद ने ये नहीं कहा कि तुमने मौजूद कैसे करने हैं, कैसे हासिल करना है, रूह कुदस कैसे लेना है. आजकल ये भी तरीके बताए जाते हैं कि जो आपने रूह कुदस कैसे पाना है. बिल्कुल ठेकेदार लगे हुए आप रूह कुदस के, खुदा की बख्शिश है. मैं आपके हाथ रखूंगा तो आपको रूह कुदस मिलेगा, मैं आपको धक्का दूंगा, आप गिरेंगे तो रूह कुदस मिलेगा. ये खुदावंद के खादिम आए मेरे चर्च में, पाकिस्तान, बड़े मशहूर हैं वो, और वो लोग नहीं गिरे, बेचारे सादे लोग थे. तो वो मुझे कहने कि भाई साहब आपकी कलीसिया में ना ईमान की बड़ी कमी है. मैंने कहा क्यों? और लोग ही नहीं गिरे जी. मैंने कहा ये आपको क्राइटेरिया है? वो गरीब लोग हैं, वो नहीं प्रिटेंड कर सकते, वो नहीं एक्टिंग कर सकते. आप हर हफ्ते वही लोग सामने खड़े किए होते, गिरते हैं फिर उठ जाते हैं. खुदावंद तो गिरते हुए को उठाने के लिए आया है. तो मैंने कहा जी प्लीज आप ऐसी बात ना करें. तो हम अपनी जो रूहानियत है, अपनी जो स्पिरिचुअलिटी है, वो दूसरों पर इम्पोज करने की कोशिश करते हैं. हमारे सामने जो रोल मॉडल है वो खुदावंद यीशु मसीह है. इन ऑल सॉर्ट ऑफ सर्कमस्टांसेस, इन ऑल सॉर्ट ऑफ सिचुएशन, वी कैन सी दैट ही वाज प्रेइंग. और आपको पता है कि खुदावंद ने सुबह सवेरे उठकर पहाड़ पर जाकर दुआ की, अपने शागिर्दों कहते जाओ मैं तन्हाई में दुआ करना चाहता हूँ. पब्लिकली, इंडिविजुअली, वी कैन सी दैट जीसस वाज प्रेइंग. और इससे बढ़कर और मैं कोई एग्जाम्पल जो है वो मैं नहीं देना चाहता. खुदावंद से बढ़कर हमें क्यों दुआ करनी चाहिए? मैं मुख्तसर इन 3-4 पॉइंट्स को बता के इस बात को खत्म करूंगा. पहली बात, देयर इज द पावर इन प्रेयर. दुआ के वसीले से बंधन टूटते हैं, और इसीलिए खुदावंद ने दुआ करना सिखाया. शागिर्दों को कहा कि जब तुम दुआ करो तो ऐसे दुआ करना. खुदावंद ने खुद सिखाया है कि हमें दुआ करनी चाहिए. और फिर हम खतूत में बार बार इस बात को देखते हैं कि तुम्हारी दुआएं रुक न जाएं, तुम दुआ करो. रोमियो के खत में पौलुस ये सिखाता है कि जैसे में दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते, खुदावंद का रूह हमारे साथ आहें भर भर कर दुआएं करता. तुम्हारी दुआएं और मुनाजात जो है वो रुक ना जाएं. हमें रेवलेशन में, इन द बुक ऑफ रेवलेशन में, वहां पर हम देखते हैं कि ईमानदारों की दुआएं जो है वो मज़बा पर खुदावंद के सामने पहुंचती हैं. वहां पर भी हम देखते हैं कि लोगों की दुआओं का असर जो है वो हमें नजर आता है. तो दुआ जो है वो इंतहाई जरूरी है, क्योंकि इससे हम जो है खुदावंद की कुदरत को जानते हैं. दूसरी बात जो है कि जब हम दुआ करते हैं, खुदावंद से हम गुफ्तगू करते हैं. अगर आप किसी को फोन कर रहे हो और आपको जवाब न मिले, आप परेशान हो जाते हैं. कम्युनिकेशन विद गॉड इज वेरी वेरी वाइटल. जब आप दुआ करते हैं, खुदावंद से गुफ्तगू करते हैं, और खुदावंद आपसे गुफ्तगू करते हैं, और फिर यह है कि खुदा से हमारा रिश्ता जो है वो और ज़्यादा मजबूत होता है. दुआ के जब आप उसको बार बार आप दुआ करते हैं, बाप कहकर उसे बुलाते हैं, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है. आप खुदावंद से दुआ करते हैं. प्रेयर इज द ओनली वे टू नो गॉड. दुआ के वसीले से आप खुदा को जान सकते हैं. अगर आप दुआ नहीं करते, आप खुदावंद को नहीं जान सकते. दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि खुदावंद को जानना चाहते हैं, लेकिन वो खुदावंद को नहीं जानते, क्योंकि खुदावंद से दुआ नहीं करते, देवी देवताओं से दुआ करते हैं. जिंदा खुदा को नहीं जानते हो, खुदा से. और लोगों के अंदर जानने की बहुत बड़ी ख्वाहिश है खुदा को, लेकिन उसका जानने का
سب سے جو ضروری طریقہ ہے، دیکھیے آپ کلام پڑھتے ہیں وچ از ویری گڈ، خداوند آپ سے بات کرتا ہے، لیکن جب آپ خداوند سے بات نہیں کریں گے تو آپ کو خوشی محسوس نہیں ہوگی، آپ کو وہ جوائے، وہ پیس جو ہے وہ حاصل نہیں ہوگا جب تک آپ خداوند سے دعا نہیں کریں گے، کیونکہ خداوند اپنے دل کا حال تو آپ سے بیان کرتا ہے، لیکن آپ اپنے دل کا حال کیسے خداوند سے بیان کریں گے اگر آپ دعا نہیں کریں گے؟ پھر یہ ہے کہ ہمارا بھروسہ بڑھتا ہے، کھٹاؤ تمہارے واسطے کھولا جائے گا، جب ہم کھٹاتے ہیں وہ کھولتا ہے، جب ہم مانگتے ہیں وہ دیتے ہیں، تو پھر ہم ڈھونڈتے ہیں پاتے ہیں، پھر ہم دوسروں کو بتاتے ہیں کہ دیکھیں میری دعا کا خداوند نے جواب دیا ہے، اس کی دعا کا خداوند نے جواب دیا ہے، آپ بھی خداوند سے دعا کریں، اٹس اے گڈ ٹیسٹمنی۔ جب تک آپ دعا نہیں کریں گے خداوند پہ آپ کا بھروسہ اور یقین جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ نہیں بڑھے گا، اور پھر اگر آپ کو زندگی میں کوئی پریشانی ہے، اف یو لاسٹ یور وے، تو خداوند جو ہے وہ آپ کو ڈائریکٹ کرتا ہے تھرو پریئر، خداوند آپ کے راستے جو ہے وہ مار کرتا ہے، خداوند پر جب آپ بھروسہ کرتے ہیں تو آپ خداوند آپ کی رہنمائی کرتا ہے۔ خداوند کے سامنے اپنے دل کا حال کھولنے کے لیے دعا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور اب میں نے حنا کی مثال دی کہ وہ جب سال بہ سال آپ کی ہیکل میں دعا کرتی، کہتے کہ میں نے خداوند کے سامنے اپنے دل کو کھولا ہے۔ ایک اور جو بات ہے، فیئر، we can see how the fear and the devil is ruling in this world۔ جب آپ دعا کرتے ہیں you need to pray to God to come out of that fear۔ وہ تمام طرح کا خوف جو ہے جو آپ کی زندگی میں ہے وہ دعا کے وسیلے سے ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ خداوند آپ کو انکریج کرتا ہے، خداوند آپ سے بات کرتا ہے، آپ خداوند سے بات کرتے ہیں۔ جب آپ اپنے عزیز و قارب سے بات کرتے ہیں تو آپ کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے، ہاں میں نے سنا ہے، میں نے اس سے بات کی ہے، آج صبح میری بات ہوئی، آج میں نے اس سے بات کی، کل میں نے بات کی تھی، آپ کو اس کی خیر خیریت کا پتہ چلتا ہے، آپ خوش ہو جاتے ہیں، آپ کا حوصلہ بڑھتا ہے۔ میں ہمیشہ اس بات کو بڑی ایک کمی محسوس کرتا ہوں کہ جب بھی میں میری والدہ جب زندہ تھی تو میں نے روزانہ امی کو فون کرنا، چاہے 2-3 منٹ کے لیے میں نے فون کرنا، انہوں نے دعائیں دینی، تو میں بڑا خوش ہو جاتا تھا کہ تھینک یو۔ تو اب وہ جو دعا ہے ان کی وہ کمی محسوس ہوتی ہے، جانا سب نے ہے دنیا سے، لیکن جب آپ دعا کرتے ہیں خداوند سے تو آپ کا ایمان بڑھتا ہے کہ میرا خدا زندہ ہے، میں اس سے بات کر رہا ہوں، وہ میری دعاؤں کو سنتا ہے، آپ خود بھی حوصلہ پاتے ہیں، دوسروں کو بھی حوصلہ دیتے ہیں کہ جی ہمارا خدا جو ہے وہ زندہ خدا ہے، وہ ہماری دعاؤں کو سنتا ہے۔ آپ اوور کم ہوتے ہیں ان تمام اس طرح کے فیئر جو ہے، خوف جو ہے، اور دعا کے سلسلے سے آپ کو رہائی ملتی ہے، اور خداوند جو ہے وہ آپ کے لیے عجیب کام جو ہے وہ کرتا ہے، آپ کے اندر انکساری فروتنی پیدا ہوتی ہے دعا کے وسیلے سے، کیونکہ آپ خداوند کی قدوسیت کو، خداوند کے جلال کو دیکھتے ہیں۔ اور جن جن لوگوں نے خداوند کے حضور گھٹنے ٹیک کے دعا کی، میں نے آپ کو یونا کا بتایا تھا، یونا جو خداوند کا شاگرد جیسے مکاشفہ لکھا، اس کو اپاسل آف دی کیمل نہیں کہا جاتا ہے، کہ اس کے گھٹنوں پہ جو ہے نشان پڑ گئے تھے، پوڑے پڑ گئے پنجابی کرنے میں، سخت ہو گیا تھا اس کا ماس جو ہے، اور آخری زمانے میں اس کو اٹھا کے لے کے جاتے تھے دعا کے لیے۔ ایسے نہیں خداوند نے اس کو مکاشفہ دے دیا، ایسے بھی اس کو عثمان کو خداوند اٹھا کے لے گیا، اس لیے کہ وہ دعا کرنے والا شخص تھا، اور اس کی دعا کے وسیلے سے، اس کے ریولیشن کے وسیلے سے آج جو کچھ بھی خداوند نے اس پر ریویل کیا ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے، ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے ذریعے ان کی دعا کے لیے میں خداوند کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں۔ میرے جو پاسٹر تھے آج وہ دنیا میں نہیں ہے، میرے لیے بہت بڑا رول ماڈل پادری سردار گڈ صاحب، تو میں آفس سے دوپہر میں چھٹی کر 4 بجے چرچ ہوتا تھا، تو میں بہت کئی دفعہ ارلی چلا جاتا تھا چرچ میں، تو میں نے پادری صاحب کو دیکھنا کہ کوئی بھی اس وقت چرچ میں نہیں آیا ہوتا تھا، پادری صاحب وہاں پر گھٹنے ٹیک کے دعا کر رہے ہوتے تھے، اینڈ دیٹ واز مائی رول ماڈل۔ وہ میں ان کو پیر پادری کہتا ہوں، اپنا کلام سنانے میں، دعا کرنے میں میں نے اس شخص کو دیکھا ہے، اور یہ آپ کی زندگی کا ایک ایسی پریکٹس ہو جانی چاہیے، صرف ریچول نہیں، اس کو زندگی کا ایک حصہ بنا لیں کہ خداوند کے حضور گھٹنے ٹیک کے دعا کرنا، اور خداوند آپ کو برکت دیتا ہے۔ پچھلے دنوں جب ورشپ کی بات کر رہے تھے تو میں نے آپ کو یہ سکھایا تھا۔ یہاں پر ایک آخری بات میں کر کے اس بات کو ختم کروں گا کیونکہ وقت ہو چلا ہے، اور خروج کی کتاب 17 باب اور 11 آیت کو میں اپنے حوالے سے ایک بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں، شیئر کرنا چاہتا ہوں، میں اپنا بوجھ آج آپ کے ساتھ ایک بانٹنا چاہتا ہوں، اور میں چاہوں گا کہ آپ ضرور اس آیت کو دیکھیں، اور خروج اس کا 17 باب اس کی 11 آیت۔
जंग हो रही थी। 8वें आयत में लेता हूँ, अमालेकी आकर अफादीम में बनी इसराइल से लड़ने लगे और मूसा ने यहोशू से कहा कि हमारी तरफ से कुछ आदमी चुनकर ले जा और अमालेकियों से लड़, और मैं कल खुदा की लाठी अपने हाथ में लिए हुए पहाड़ की चोटी पर खड़ा रहूंगा। सो मूसा के हुक्म के मुताबिक यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा और मूसा और हारून पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए। ये उसका पास मंजर है। लेकिन जो आयत मैं आज आपके साथ बांटना चाहता हूँ, ये मेरा बोझ है, ये मेरी रिक्वेस्ट है, ये मेरी विनती है आपसे, सुनिए। और जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था, बनी इसराइल गालिब रहते थे, और जब वो हाथ लटका देता था तब अमलेकी गालिब होते थे। और जब मूसा के हाथ भर गए तो उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया और उस पर बैठ गया, और हारून और हूर एक उधर से दूसरा उधर से उसके हाथों को संभाले रहे। तब उसके आफताब के गुरूब होने तक मजबूती से उठे रहे, और यहोशू ने अमालेक और उसके लोगों को तलवार की धार से शिकस्त दी। He was an old man, but he was a very, very dedicated and prayerful person. मूसा जब जंग में था, हाथ उठाता था खुदावंद के हुजूर, लोग जंग जीत जाते थे। जब वो उसके हाथ थक जाते थे, कमजोर था, खुदावंद का कलाम बताता है कि जिस्म तो कमजोर है, बदन कमजोर है, लेकिन रूह मुस्तैद है। जब वो हाथ ऐसे उठाता था तो उसके हाथ थक जाते थे, और खुदावंद के पाक कलाम में देखा कि हारून और हूर जो थे वो उसके हाथ ऊपर उठा के रखते थे। They lift up their hands, his hands. और जब उसके हाथ उठे रहते थे तो जंग जीतते थे। फिर उसके हाथों के नीचे उन्होंने पत्थर रख देते थे। अजीजों, खुदावंद के खादमों को जरूरत होती है। एक टाइम आता है जब उनके हाथ कमजोर हो जाते हैं। कितने लोग हैं जो दुआ करते हैं? आप में से कितने लोग हैं जो हमारे लिए दुआ करते हैं? कितने लोग हैं जो हमारे हाथों को लिफ्ट अप करते हैं? 120 साल तक मूसा की उम्र थी। 40 साल वो बनी इसराइल को बियाबान में लिए फिरा। खुदा उनसे कहा कि तू नहीं जाएगा मुल्क मुआदा में। उसने एक छोटी सी गलती कर दी थी, लेकिन खुदा किसी का तरफदार नहीं है। लेकिन आगे चलकर हम देखते हैं कि मूसा और एलिया खुदा से बातें कर रहे थे। खुदा उसको छोड़ा नहीं, खुदा ने उसको जलाल में शामिल किया। लेकिन मूसा के साथ यहोशू और हूर जो थे, उसके हाथ कम रहते थे। God is expecting from his people that they should lift up the hands of the servant of God. खुदावंद के लोगों के हाथ बुलंद रखें ताकि वो आपके लिए दुआ करते रहें और आपको कामयाबी नसीब हो। उसको अपनी कामयाबी नहीं चाहिए थी, वो बनी इसराइल की कामयाबी के लिए अपने हाथ बुलंद करता था। अजीजों, आज मैं जो कुछ भी कर रहा हूं, मैं अपने जलाल के लिए नहीं करता। आई नो, खुदा मेरे दिल में मुझे बताता है। बहुत सारे लोग बातें करते हैं, शायद पैसों को बड़ा शौक है, टीवी का पैसों को बड़ा शौक है ना, पैसे से मॉडल बनने हैं। नहीं, वट आर आई एम डूइंग फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। क्या आप खुदावंद के खादिम के हाथ उठाने के लिए तैयार हैं? यस। मैं थक जाता हूं, मेरा गला थक जाता है, मेरा सर दर्द करता है, मेरी आंखें दर्द करती है, मैं इंसान हूं। लेकिन क्या आप खुदावंद के खादिम के हाथ उठाने के लिए तैयार हैं? I give praise to God for my brothers, those who are helping me in my ministry, जो मेरे हाथों को बुलंद किए हुए हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि हर एक शख्स अपने खादमों के, जहां पर भी आप हैं, लिफ्ट अप द हैंड्स ऑफ योर सर्वेंट, दोज आर वर्किंग अमंग यू, जो आपके दरमियान खिदमत कर रहे हैं, उनके हाथों को नीचे न गिरने दें ताकि आप पाते हों। खुदा आपको बरकत दे। आमीन। आइए हम दुआ मांगे। खुदा का शुक्र अदा करें खुदा के इस पाक कलाम के लिए, जो खुदा चाहता कि हम दुआ मांगे। खुदा ने अपने शागिर्दों से पूरी जिंदगी सिर्फ एक ही गिला किया कि जब वो जानकनी की हालत में था, उसने उनसे कहा कि जागो और दुआ करो,
लेकिन वो सो जाते थे। और खुदावन ने उनसे कहा कि क्या तुम मेरे साथ 2 पल भी ना जाग सके। खुदावन चाहता है कि दुआ करें। आइए हम खुदावन से दरख्वास्त करें कि खुदावन हमें ये तौफीक दे कि हम दूसरों को लिफ्ट अप करें, उनके हाथों को बुलंद करें और खुदावन के तख्त के पास दिलेरी से आएं ताकि वो हमें बरकत बख्शे, हमें कुव्वत अता करे, ताकत दे। और मैं दरख्वास्त में वकील साहब से दुआ लें, रहमत फरमाएं। आइए हम दुआ मांगे। हालेलुया, हालेलुया। आज हम अपने सर को झुकाएं, खुदावंद की हुजूरी को महसूस करें और इस मीठे कलाम के लिए खुदावंद का शुक्र करें। इस कलाम के लिए खुदावंद का शुक्र करें। जो कुछ हमने सुना है, जो कुछ खुदा के पाक रूह ने अपने बंदा के वसीले से हमें बताया है, खुदावंद बख्श दे कि हम उस पर अमल करने वाले बने। खुदावंद खुदा, जिस तरह हमें ईमान की मजबूती मिली है, जिस तरह हमें यह पता चला है कि हम कैसे दुआ कर सकते हैं, तेरा शुक्र हो यीशु मसीह। खुदावंद हम दुआ करते हैं अपने पास्टर साहब के लिए खुदावंद, उनकी जिंदगी के लिए खुदावंद, उनकी तंदुरुस्ती के लिए खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं। तेरा शुक्र करते हैं कि तूने उनको खुदावंद ये तोड़ा बख्शा और वो तेरी खिदमत कर रहे हैं। खुदावंद हमें इस काबिल बना कि हम उनके बाजू उठाने वाले बने, ना कि खुदावंद उनको कमजोर करने वाले बने। खुदावंद तेरे बंदा के लिए तेरा शुक्र करते हैं यीशु मसीह, तेरा बहुत शुक्र हो, तेरा बहुत शुक्र हो। और इस कलाम के वसीला से खुदावंद हमें बरकत दे कि हम 100 गुना फल लाएं खुदावंद। और जितने भी लोग इस मीडिया के जरिए इसको देख रहे हैं और जो बाद में भी देखेंगे यीशु मसीह, उन सबको बरकत दे खुदावंद। और जहां जहां पे भी वो हैं, वो खुदावंद उनको ये तौफीक दे कि वो अपने पासबानों के साथ खड़े हों, उनकी मदद करें खुदावंद, तेरे कलाम को फैलाने में उनकी मदद करें खुदावंद। वो पीछे ना रहें खुदावंद, बल्कि शाना बशाना काम करें। और खुदावंद जिस तरह हमने ये पूरा कलाम सुना और जैसे पास साहब ने अपने पास जो उनके उस्ताद उनके बारे में बताया कि जिससे उन्होंने कलाम सीखा और सारा जो पास्टर साहब थे, खुदावंद खुदा तो अपने लोग तैयार करे खुदावंद, खुदावंद तो अपने मन्नात तैयार करे खुदावंद इन पास्टर साहिबान के जरिए, और हमें उनके बाजू है खुदावंद बनने की ताकत खुदावंद। तंदुरुस्ती दे, अकल दनाई फहम दे, सब कुछ मांगते तेरे जिंदा जलाल के नाम से, आमीन। आइए खुदा की हम करें और खुदा के हुजूर हम ज़रूर बढ़कर गाएंगे। रहेगा नाम सदा की कर मसीहा, रहेगा जब तलक सूरज रहेगा। ज़रूर बढ़कर गाएंगे। और आप अपने हदिया जात जो अपने हाथों में लें और खुदा के हुजूर उनको रखें और खुदा का शुक्र अदा करें खुदा के लिए, 2 बरसों के लिए। क्योंकि मेरा जी चाह है कि हम 69 गाते हैं। रब सचमुच उस भी सुनता है, दुआ जो तो मांगता है। सॉरी कोई बात नहीं। ज़बूर 69 रब सचमुच थैंक यू। रब सचमुच उसकी सुनता है, रब सचमुच उसकी सुनता है। दुआ जो उसको मांगता है, दुआ जो उसको मांगता है, अपने असीरानु खुदा हकीर समझेगा, अपने असीरानु खुदा हकीर समझेगा। मुसीबत के विच फंसया, मुसीबत के विच फंसया, दुखियारा दुख विच फंसया, दुखियारा दुख विच फंसया। गलासी बाबूला गोलंदी गलासी बाबूला गोलंदी खुदा देना
اچھا میں سب سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اوبیسلی آپ نے بعد میں کلمات کے برکات کہہ رہے تھے اور میرا خیال ہے کہ سب کو میری آواز آ رہی ہوگی تو کین یو ہیئر می پلیز؟ آپ سارے میری آواز سن رہے ہیں؟ اوکے تھینک یو. ابھی کے جیسا پاس صاحب نے کہا کہ ہر روز ہم بائبل اسٹڈی کرتے ہیں نا شام میں 8 بجے کے قریب اور میں دیکھتا ہوں کہ پاس صاحب ہر ایک کو انوائٹ کرتے ہیں. میرا خیال ہے آپ لوگ فیس بک پہ ہوں گے لازمی جوائن کرتے ہوں گے آپ لوگ ہمیں. لیکن میں آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جب فرائیڈے کو اور سیٹرڈے کو ہم زوم والی میٹنگ کرتے ہیں جس میں ہم جو ہیلنگ منسٹری ہے جو ہم ہیلنگ کی ہم نے پریئر شروع کی ہیں ایوری فرائیڈے 8 بجے تاکہ ہم بیماروں کے لیے دعا کر سکیں. میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ پلیز شامل ہوا کریں اس میں. اپنے بچوں کو لے کر بیٹھا کریں. 1 گھنٹہ خدا کے لیے آپ اسپیئر کرنا روز میرا نہیں خیال کہ بہت بڑی بات ہے اور اس سے آپ کے ایمان کو مضبوطی ملے گی اور آپ اپنے اولاد کو سکھا رہے ہوں گے کہ انہوں نے کیسے خداوند کے کلام میں چلنا ہے, کیسے خداوند کے کلام کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو گزارنا ہے. یا ایسا نہ ہو کہ جہاں پہ آپ بھی اس ماحول سے بڑا واقف ہے اس کنٹری کے کہ وہ کسی اور بھول بھلیوں میں کھو جائیں اور بعد میں آپ کہیں کہ کاش ہم اس کو خدا کی طرف لے کے آتے. تو میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے پلیز آپ فرائیڈے کو 8 بجے جب ہم ہیلنگ کے لیے پریئر کرتے ہیں آپ آیا کریں, آپ ہمارے ساتھ مل کے دعا کیا کریں بیماروں کے لیے. اور جتنے لوگ زیادہ دعا کریں گے اوبیسلی ہیلنگ بھی اتنی زیادہ ہوگی. اور جو ہماری بائبل اسٹڈی ہوتی ہے وہ ہر شام 8 بجے ہوتی ہے لیکن فرائیڈے کو کیونکہ وہ ہیلنگ پریئر ہوتی ہے سیٹرڈے کو وہ 7 بجے ہوتی ہے. تو پلیز آپ یاد رکھیں اور سیٹرڈے کو جو 7 بجے ہماری بائبل اسٹڈی ہے اس میں ہم زوم پہ کرتے ہیں. تو پلیز سارے آپ جوائن کیا کریں. 1 گھنٹہ آپ اپنے بچوں کو ساتھ لے کر بیٹھیں, خداوند کے پاک کلام کو سیکھیں. اور میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ پتہ نہیں کبھی ہمیں یہ موقع ملے گا یا نہیں, یو نیور نو, کہ ہم دوبارہ
इस तरह खुदावंद के कलाम को सीख सकेंगे या नहीं, वी डोंट नो। मैं अभी पास्टर साहब जब से ये लॉकडाउन हुआ है, सारा काम कर रहे हैं यहाँ पे स्टूडियो में, तो मेरा ख्याल है कि कभी भी मैंने बाइबल मुकद्दस को इस तरीके से नहीं देखा या इस तरीके से नहीं पढ़ा या इस तरीके से नहीं जाना जितना मैंने ये पिछले 2-3 महीनों में जाना है। और मैं चाहता हूँ कि जिस तरह मैं बरकत पा रहा हूँ रोजाना, आप लोग भी बरकत पाएं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं आपसे यही बार बार कहता हूँ कि प्लीज आप हमें ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। चंद एक नाम मेरे सामने भी प्रेयर के लिए आए हैं और मैं बेटी से दरख्वास्त करूँगा कि वो दुआ में रहनुमाई करें और इन बजी लोरीना पीटर के लिए, बजी मार्था के लिए और जोसफिन बहन के लिए, जोसफिन मजीद के लिए, और हम खुदा से दुआ करें बजी शहीन के लिए और विलियम जान फौजियत के लिए और शाजिया के लिए। हम इनके लिए दुआ करेंगे और आज रिफत की बर्थडे भी है तो हम उसके लिए भी दुआ करेंगे कि खुदावंद जो है उसे उम्र की दराजी बख्शे इन सब की वाइफ के लिए। और हम इन तमाम बातों को खुदा के सामने रखेंगे और मैं दरख्वास्त बेटी साइमा वॉल्टर से कि वो इन तमाम लोगों के लिए दुआ करें, बजी लोरीना पीटर के लिए, बजी मार्था के लिए और बजी जोसफिन के लिए, शाहीन और उनके ख़ानदान के लिए, विलियम जॉन और फौजिया के लिए, सब के लिए, शादी के लिए दुआ करें। जी बेटा साइमा। आइए दुआ करें। आज हम दुआ में सर को झुकाएं और खुदा का शुक्र करें। कुदूस 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 बिना आसमान के खालिक व महान, तेरा शुक्र करते हैं खुदावंदा इन दी हुई नेमतों के लिए, इन बरकतों के लिए खुदावंदा जो तूने हमारी जिंदगियों में बख्शी है। आज के इस दिन के लिए खुदावंदा बहुत से लोग हैं जो इस दिन को देखना चाहते थे खुदावंदा, लेकिन खुदावंदा हम किसी से भी बेहतर नहीं है। तेरा शफकत वाला, तेरा मोहब्बत वाला हाथ है खुदावंदा जो हम पे है। तेरा लाख लाख शुक्र करते हैं खुदावंदा। हम इस काबिल नहीं है कि तेरे आसमान की तरफ भी आंख उठाकर देख सके खुदावंदा, लेकिन खुदावंदा तुम्हारे तमाम गुनाहों को माफ करते हैं, तुम्हारे गुनाहों को हिसाब में नहीं लाता खुदावंदा। हम तेरी वो भटकी हुई भेड़ें हैं खुदावंदा जिनको तो बार बार अपने पास बुलाता है खुदावंदा, तो बार बार हमें नजात देने की कोशिश करता है खुदावंदा। और खुदावंदा हम तेरी आवाज को नहीं सुनते, हमें खुदावंदा हम तुझसे माफी मांगते हैं अपने तमाम गलतियों की, अपने तमाम गुनाहों की खुदावंदा। और खुदावंदा इस इबादत के लिए तेरा शुक्र करते हैं, इस कलाम के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंदा जो तूने अपने बंदा के जरिए हमारी जिंदगियों में बख्शा खुदावंदा। खुदावंदा दुआ करते हैं कि ना सिर्फ हम इस कलाम को अपने तक रखें बल्कि दूसरों तक भी फैलाने वाले बन सके खुदावंदा। खुदावंदा जिस तरह ये सब प्रेयर रिक्वेस्ट हैं खुदावंदा, जिनके भी खुदावंदा पास्टर साहब ने नाम दिए हैं खुदावंदा, उन सबको नाम का नाम तेरी हजूर लेके आते हैं। रवीना है, मार्था है और खुदावंदा जो भी है नाम का नाम खुदावंदा, उनको सबको तेरी हजूर लेके आते हैं। हर किसी की मुश्किल परेशानी को तो जानता है, हर किसी के दिलों के भेद को तो जानता है खुदावंदा। खुदावंदा तू जानता है कि इस वक्त हम सब लोग कौन सी चीजों में खुदावंदा घिरे हुए हैं, कौन सी दुनियावी परेशानियां हैं खुदावंदा। खुदावंदा एक एक को बड़ी भारी बरकत दे, अपना रहम वाला हाथ रख, वही पाक लहू खुदावंदा जो तूने स्लीप पे बहाया हमारे लिए खुदावंदा। एक बार फिर तुझसे मांगते हैं खुदावंदा, तो सब पे खुदावंदा जितनी प्रेयर रिक्वेस्ट हैं खुदावंदा, और इस वक्त जो भी अपनी जो है वो सालगिरह खुदावंदा जो भी सेलिब्रेट करते हैं उनको भी तेरे हजूर लेके आते हैं खुदावंदा। हर किसी को बड़ी भारी बरकत दे खुदावंदा, उनकी तमाम जिंदगियों की परेशानियों को दूर कर खुदावंदा। तमाम कलीसिया के लिए दुआ करते हैं खुदावंदा, इसी तरह मोहब्बत जंगाकर तू बनाए रख खुदावंदा। इसी तरह हम तेरे हुजूर आए, तेरे पाक कलाम को सुने। पास्टर साहब के लिए बहुत खुदावंदा तेरा रहम वाला हाथ मांगते हैं खुदावंदा। इस वक्त जबकि लोग जो है तरस रहे हैं इस कलाम को, और इस बाइबल टीवी के जरिए खुदावंदा, पास्टर नोवा सैमुअल के जरिए जिस तरह हम इस कलाम को सीख रहे हैं, तेरा बहुत भारी शुक्र अदा करते हैं खुदावंदा। उनको तो इसी तरह जिंदगी दे, तंदुरुस्ती दे, हिम्मत ताकत दे खुदावंदा। और हम सब में खुदावंदा एक खुदावंदा पाक रूह पैदा कर, जिसके जरिए हम तुझसे दुआ कर सके, तुझसे मिन्नत कर सके खुदावंदा, अपनी जिंदगियों को तेरे हजूर पेश कर सके खुदावंदा। वो तमाम रूहानी खुशियां तुझसे मांग लेते हैं, तमाम कलीसिया के लिए और तमाम
शामिल हों। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर मिलती है जमीन पर भी। हमारे बंधु की आज्ञा बख्श दे, जिस अपने खुदा को माफ करते हैं तो हमें माफ करो, हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, कि बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा तक रहते हैं। आमीन। खुदावंद अपना चेहरा आप पर जलवागर फरमाए, खुदावंद आपके बदन जान और रूह की हिफाजत करे, आपका बुलाने वाला सच्चा वैसे करेगा। और मैं खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक की रफाकत और शराकत आपसे लेकर हमेशा तक आप सबके साथ, दुनिया भर के मुकद्दीन के साथ आपसे लेकर हमेशा हमेशा तक होती है। आमीन। थैंक यू। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे और खुश रहें और खुश रखें। कीप वॉचिंग बाइबल टीवी ग्लोबल और बाइबल स्टडी में और दीगर प्रोग्राम जो आप शामिल हों, हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।